reality is कि लोगों को 25 तक समझ नहीं आता till 25 what they actually want to do and I know why this man is laughing. सबसे पहले मेरे को नींद आ जाओ. Oh, I'll kill you. It's a fact यार कि जितने भी लोग whatever stream they have chosen, majority of the people are not working in those streams now. Are you all excited? No, bring it the energy. Are you excited? Yeah. It's reality versus LinkedIn. मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला, but how will people post it on LinkedIn? I am thrilled to announce that I have been just authorized by the reputed government of India. There is a very Indian saying, बेटा 10th पास कर लो, life set. बेटा 12th में अच्छा नंबर ले और life set. We are here today and yes, I'm super excited. Cheers. Cheers for a new beginning. And today we are shooting our first podcast, right? We are sitting At the Lodi Garden. at Lodi Garden, and this area is quite good. Ambience is quite. We are surrounded with like birds, chirping, nature, greenery, and few people. How are you feeling, by the way? Just calm and nice. Calm and nice. Calm and nice. Good. And so, what are we going to talk about today? So I'm going to start the conversation with asking you a question. I want you to go down memory lane. See, abhi main 18 की हुई थी, right? And I remember my 18th birthday. I was not in Delhi. I was having a fun vacation. I want you to remember what your 18th was like. My 18 were like, to be honest, when I was in my 18, I have completed my 12th, and that was the time when I was preparing for my NEET exam. Or bhai, you know what? 18 were so confusing क्योंकि वो एक ऐसा फेज होता है ना जहाँ पे you have to decide कि आगे करना क्या चाहते हो तुम. कॉलेज, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है ना, कौन से कॉलेज चाहिए, उसके लिए आप उसके लिए struggles and everything. Yeah, so 18 was not so easy. It was quite, you know what, a kind of like phase जहाँ पे like everyone has to go through. It like वो समय के साथ pass down हो जाता है. But you know what? For me, what 18 has been like is that I slept at the night, everyone wished me happy birthday, and the next day, I am an adult. And I have my own PAN card, a voter ID card. I am the independent owner of my bank account now. And I am supposed to be the adult who knows everything. I can elect the politician of this country. I am that capable of now. चाहे मुझे पता हो ना हो कि कौन सा politician कौन सी पार्टी का है, but I am capable to elect them now. Yes, you are. And you know what? It feels like every responsibility, you are supposed to know everything. Every responsibility on your shoulders. Like overnight में मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान आ. So indirectly you are trying to say कि within a day तुम्हारे पास within a night, right? तुम्हारे पास हर एक चीज की opportunities खुल जाती है. Now you are independent. Now you have grown your wings. Now you can fly. You can do whatever you want to do, right? Even you got your deal recently. Yes. How was the experience? The experience was like जहाँ माँ बाप पहले बोलते थे कि नहीं बेटा पहले 18 के हो जाओ, गाड़ी नहीं चलानी, अभी नहीं चलानी. एकदम से माँ बाप आ लाइक बेटा अब तुम बड़े हो गए, तुम गाड़ी चलाना सीखो और हाँ जाओ गाड़ी लेके जाओ. देखो 6 महीने में मेरे में वो बुद्धि आ गई कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ. Okay, and tell me one thing. बोलो. Your 18 is not so easy. Like it's your prime time. Like for the first time you are stepping your foot outside your home. In the world, yeah. Yeah. School के bubble से भी come out. Like in the real world. How was your experience? और आपने ऐसा क्या feel करा जो शायद आपको कॉलेज नहीं सिखा पाया? जब तक आप 12th में थे तब तक, उसके बाद आपको क्या फील आया?
हाउ यू फेल्ट, लाइक आपको बताया क्या गया था, बट जब रियलिटी आई तो आप उसे कैसे फेस करा, क्या करा, हाउ वाज दैट? See, I'll start with the backstory. That there is a very Indian saying, बेटा 10th पास कर लो लाइफ सेट है, बेटा 12th में अच्छा नंबर ले और लाइफ सेट, बेटा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा लाइफ सेट है. Let me tell you the brutal truth. Life just gets worse. It never gets set. मतलब जो हमें क्या बोलते हैं, जो हमारे माँ बाप, हाँ, माँ बाप नहीं, like anyone in the society, even those uncles and aunties and every unknown relative you know, everyone is like, क्या बेटा देखो रिलेटिव्स उतना नहीं बोलते जितना तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है. see, माँ बाप बोलते because माँ बाप also have a certain societal expectation. They live in a society and they are shaping them. They are shaping us like their parents have shaped them to be in the True. society. And they are completely true. अपनी जगह पे they're not wrong. जैसे बोला जाता है ना, लालच दिया जाता है कि अगर बेटा तुम फर्स्ट क्लास में, अगर तुम अपने क्लास में फर्स्ट आ गए ना, यू विल गेट समथिंग दैट यू रियली लाइक अगर आपको फोन पसंद है, आई विल गिव यू अ न्यू फोन. इफ यू रियली वांट टू गो समवेयर, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड टू एक्सपीरियंस दैट. और कहीं ना कहीं ये लालचपन, एक ग्रीडीनेस हमें और मेहनत करने को उकसाता है, चीजें करने को उकसाता है. एंड वी रियली यू नो, जितना हो सकता है, जितना हम कैपेबल होते हैं उसमें वर्क करने को, एफर्ट डालने को वी ऑलवेज डू. बट सच बताऊं, जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, एंड जब हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई नाउ इट्स टाइम कि मेरा बच्चा 80%, 90%, 95% लाएगा कॉलेज में, और जब हमारी रिजल्ट आती है ना, तो वो बिल्कुल एक मिरर जैसा दिखाता है ना. हम मेहनत कम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहनत हमें लगता है कि हम वी आर गिविंग आवर 100%, बट कभी रिजल्ट अच्छे नहीं आती है ना. कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मीट अप नहीं कर पाते हैं हम. कभी हमारी जो एक कहीं ना कहीं होता है कि माइट बी आई कैन गेट 85, 90 और 95, सेल्फ एक्सपेक्टेशन यू कांट मीट, या तो वो हमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है. एंड यू नो व्हाट, 18 जहां पे अधिकतर लोग बहुत सारी चीजों को फील करते हैं, लाइक लव, एंजाइटी, है ना, योर फर्स्ट इंटरकोर्स और योर फर्स्ट यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो वो कभी किए नहीं थे, लाइक घर से बाहर जाना अकेले, है ना. बहुत बार होता है कि एक लीगल एज होता है, दारू भी बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो वो आफ्टर 18 दे आर लीगल टू ड्रिंक, go out, to go in a club, do party, this and that, right? तो मतलब 18 के बाद ना what really happens is कि you just step out of that school bubble. You know क्या होता है कि in our school, like I was the head girl of my school, and you know when you're the head girl of the school you feel like इस पूरे institute में I am the best. एक second, what? You were the head girl? And what is meant by this? Please elaborate. The leader of the student union of the school. Oh my God. So basically कितने classes आते थे उसमें? पूरा स्कूल आता. पूरा स्कूल आता था. I was my 12th में head girl थी ना, पूरा स्कूल आता. So how was the experience, to be honest, to be a leader, to handle all the, you know what, all the children? It's a big task. Yes. Right? You're the face of the school. कोई बाहर से आएगा तो student union ही सबसे पहले आगे जाता. So how was the experience? And ऐसा क्या कुछ चीजें थी जो आपको काफी अच्छी लगी और कुछ चीजें थी जो आपको काफी खराब लगी, और समथिंग लाइक दैट? The thing is that you know when you're the head girl, like sticking to the topic, when you're the head girl you feel like मैं अपने स्कूल में सबसे बेस्ट हूँ, I'm the teacher's favorite, मुझे सब जानते हैं. But when you come out into the world of college, you know जब हम कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके आते हैं ना, तो एवरीवन सबका IQ लेवल, नॉलेज लेवल लगभग सेम होता है, बिकॉज वी गेट एलिजिबल फॉर दैट कॉलेज. यू रियलाइज कि यार यहाँ सब मेरे से बराबर है और कुछ लोग तो मुझसे भी बहुत बेहतर. यू रियलाइज कि आई वॉज द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, बट इफ देर आर 10,000 स्कूल्स इन दिल्ली, उन 10,000 में से 5,000 की हेड गर्ल तो मेरी क्लास में है. सो मी बीइंग द हेड गर्ल इज नॉट अ यूनिक फैक्टर एनीमोर. सो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है कि यार यहाँ तो सब मेरे जैसे, देन हाउ एम आई स्पेशल. एंड बचपन से ना
18 तक आते थे हम अपने मामा के पापा के आंखों के तारे होते हैं just their favorite चहेता chahete best in everything and suddenly when we come out of this world into this world just raw and we just experience that भाई तुम कुछ नहीं हो इस बड़ी सी दुनिया में ना तुम इतनी चीटी बराबर हो कि you just equivalent to nothing जहाँ you will find that people are doing startups and grabbing various internships and everything you are like you can't even figure out कि मैंने अगले हफ्ते क्या करना और and you even struggling to go to gym every day you're supposed to figure out how you actually want to lead the rest of your life. Just tell me one thing. You are into corporate world, right? You are about to be in this field. So right now, what I'm saying, कि you know, at some point, everyone is fucked up in some way. Point. But now it's the time of social media. Everyone is trying to be something, or like if they are achieving something, if they are doing something, if they have if they have started working somewhere as an intern or something. तो you know what क्या लगता है हमें देख के when we are scrolling down, चाहे वो LinkedIn हो या Instagram पे हो, we feel like कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? Like, am I lagging behind? Or like am I incapable of doing it? Everyone is just posting something. They are trying to be like, you know what, they have just you know what, got featured in Forbes or somewhere. And you know, what do you think about I read this? a line that LinkedIn is a place where सब 19 की उम्र में ही Forbes के अंदर आ गए हैं. And you know, people on LinkedIn, like it's reality versus LinkedIn. मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला बट how will people post it on LinkedIn? I am thrilled to announce that I have been just authorized by the reputed government of India to drive a 4-wheeler car. It is such a huge achievement. I would like to thank my parents, my training driver and everything for my authorization. At the end, what they have got is just a driving license and nothing else. But वो एक को वो राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं. Then when you scroll down LinkedIn, you feel like भाई सब Forbes में आ चुके हैं मैं पता नहीं I am just lying down in bed reading books and doing nothing. I am lagging behind me in life and मेरा कुछ नहीं हो सकता. तो ये क्या फील करना हमारे लिए जेन्युइन है और सब ऐसा सब कोई फील करता है. What do you think about this? Yeah, you know what? चाहे सोशल मीडिया पे या इवन सोशल मीडिया को मारो गोली when we talk to our classmates or anyone, everyone portrays that they are so happy in life, they are doing their best and they are achieving. Like ab socho when we announced to our co-mates that we are doing a podcast, everyone was like, oh god, you are doing a podcast and everything, you're so great. Koi CFA level clear karta, people, that person will be like, I have cleared CFA level 1, but only that person internally realizes how hell their mind is right. क्योंकि एक बार आपने दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया, then you have to live up to that expectation in their mind and in your mind. True. So basically, people are achieving something that's really good, but at some point they are costing their, you know what, like what it costs. Basically, they are costing their Own peace self. of mind. Own self. They don't have a kind of peace in their life that they were really looking for. Like if you recently you have completed some SEBI NISM paper. NISM paper, right? So how was the experience when you were reading, when you were about to give their exam? What was the feeling? Were you feeling afraid, or you were like, hey, bro, can I get up to 70%? You got almost like 85%, right? So like at some point we are already fucked up in life, but still we are trying to perform better. We are trying to work hard. And whenever we scroll down social media, whether it's LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, anything. So, and we see our friends like they are going for a vacation, they are like going for an intern, they are starting their own business. It feels like that is the exact time when we
when we start sabotaging ourselves कि bro I'm just lagging behind, एंड ये फीलिंग एक जेन्युइन फीलिंग है, सब कोई फील करता है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ न्यू थिंग. ये समय समय की बात है, समय के साथ चीजें इम्प्रूव होते जाती है, मॉडिफाई होते जाती है और ग्रो भी करता है सब कोई. बोला जाता है ना कि कुछ लोगों की, देखो जर्नी सबकी अलग अलग है, किसी की जर्नी काफी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाती है, किसी की जर्नी थोड़ी सी लंबी समय लेती है, राइट? तो बस यही फर्क है, बाकी का आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट सेम. वी ऑलवेज थिंक इन द सेम वे, वी ऑलवेज फील इन द सेम वे. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट लाइक इफ योर 20s feels like you are stuck in your life, you are full of anxiety, stressed up, unable to decide what you want to do. It's like a genuine feeling for everyone. And you know what? Ki the main problem with our generation or like everyone in this age group is like हमें 10 से ना अपने लाइफ के मेजर डिसीजन लेने स्टार्ट करने होते हैं. कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, व्हाटएवर. एंड यू नो तब तो हम ये लेके डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ लोग के पेरेंट्स बोलते हैं बेटा साइंस लेना है, कुछ लोग अपने फेवरेट सब्जेक्ट की वजह से चूज कर लेते हैं. बट यू नो उस टाइम पे आइडियली जो हमें स्ट्रीम चूज करनी चाहिए वो अपने इंटरेस्ट की वजह से करनी चाहिए. एंड what actually we want to do in life, but do we actually really choose it on that basis? Most of them they choose it because their parents are telling them to. कुछ अपने कुछ मार्क्स की वजह से. अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ ना, 18 is like a very early age. Not even 18, 15. You are 15 when you're in class 10. Just consider 18. 18 is very very early age where you are deciding your life, what you want to be. Because if you are choosing, if you really want to be a doctor, then you have to take science, you have to go through physics, biology, chemistry. But do we really know what do we actually want? And मतलब it's a like fact. It's very early. It's a fact यार कि जितने भी लोग whatever stream they have chosen, majority of the people are not working in those streams now. मतलब IIT जाने के बाद people are doing MBA and working as consultants in the world of business. True. So the thing is that it's a very early on age to decide, and you know we are expected to know from 10th से सारे रिश्तेदार, relatives, even our parents are asking what do you want to do, and but the reality is कि लोगों को 25 तक समझ नहीं आता till 25 what they actually want to do. And I know why this man is laughing. Please give us some light. Okay, so I'll tell you one thing. You know what? Tell your story now. Okay, so I have completed my 10th, and after that my father is into engineering stuff. So he was like, beta, you know what? Going for medicine for general caste, it's very hard. Like to get a medical college, government medical college. So it's better. Why not come into this engineering field? Yeah. Matlab take physics, chemistry, maths instead of bio, and come into this. I'm here. I'll help you out. Just do BCom, BTech, and after that, I'll pull you in. I'm like, really? मैं बोला कि no, I'll go for PCB. तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने दिल को लेके चला हूँ, जो मेरे दिल से आवाज आती थी मैं वही लेके चला हूँ. हाँ, मैंने स्ट्रीम्स चेंज करे हैं. I want you to go in detail now. Okay, so basically what happened, फिर चलो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो ले लिया, उसकी पढ़ाई करा, 11th 12th तो निकल गया. मैंने नॉन स्कूलिंग करा था बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई अपकमिंग नीट एग्जाम. ठीक है, उसके लिए आई रियली डोंट वांटेड टू गो टू कॉलेज फॉर लाइक 11th or 12th. सो आई डिड नॉन स्कूलिंग एंड टीचर मतलब ओके थे, पढ़ाई भी उतनी अच्छे से हो नहीं रही थी. मतलब इतना था कि आई गॉट 80% इन माई 12th झारखंड बोर्ड से, एंड इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. लाइक आई एम नॉट सी, बोला जाता है ना, लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि अगर आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का कंपैरिजन अगर होना तो स्टेट बोर्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड. ये एक फैक्ट है. हमारे आई थिंक जब सीबीएसई वंस, प्लीज आई वांट एन आंसर टू दिस इन द कमेंट्स. मैं हाँ, कमेंट कर सकते हो.
बट CBSE ones I want to respond to. ओके, तो इसमें एक चीज और थी कि अगर कॉलेज डिसाइड करना होता था ना, तो स्टेट बोर्ड की प्रायोरिटी ज्यादा थी स्टेट में एज कम्पेयर टू सीबीएसई. अगर इफ आई हैव 80%, इफ आई गॉट 80% एंड यू गॉट 95% फ्रॉम सीबीएसई, आई एम फ्रॉम जैकपॉट. एंड अगर उस कॉलेज में एडमिशन करवाना होता था ना, तो प्रायोरिटी मुझे मिलती एज कम्पेयर टू यू. तो ये एक बिग फैक्टर थी. तो उसके बाद यार सी आई ड्रॉप्ड आउट. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम. I scored 480 out of 720, and that was like, you know what? 480 or 620? No, पहले जी, attempt में ना? पहले अटेम्प्ट में 480 आउट ऑफ 720. तो उसमें कॉलेज मिलने की कोई चांस ही नहीं है, स्पेशली जनरल कास्ट में. जनरल वाले तो अगर मैं ST SC होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव, you know what, I would have got a good college in my state, but वैसा हुआ नहीं. फिर अगेन आई ड्रॉप्ड. I went to Kota, एंड कोटा जाते साथ सिनेरियो वाज कंप्लीटली डिफरेंट. वहां की माहौल काफी अच्छी थी, कॉम्पिटिटिव माहौल थी, पढ़ने की माहौल थी, बट लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम. मतलब एक मैं कहाँ 10 15 20 बच्चों के ग्रुप में बैठा करता था, और कहाँ मेरे को एक ऐसा क्लासरूम मिला, अचीवर बैच फेज 3 में था मैं, जहाँ पे टोटल 400 450 बच्चे बैठते थे क्लास में. इट्स अ ह्यूज क्लास, बिग बोर्ड एंड एवरीथिंग, और सबको ड्रेस पहन के जाना था. मेरे को फिर से स्कूल की याद आ गई कि भाई नहीं, वो तो ग्रीन वाले टी शर्ट, एलन वाले रट्टू होते भाई वो ग्रीन वाले टी शर्ट बस संडे को पहनाया जाता था हमें, जब पेपर देने का समय आता था तो. अदरवाइज नॉर्मल हमें ड्रेस में जाना होता था. फिर से मेरे को याद आया यार, फिर से क्या मैं स्कूल में आ गया हूँ, फिर से वही बकचोदी चालू. और वो इट वॉज लाइक अ स्कूल. मेरे को 1 बजे जाना होता था, तो रात को 8:30 बजे तक फ्री होना होता था. तो ये सिनेरियो थी. देन आई अटेम्प्टेड फिर से फॉर नीट एग्जाम, एंड आई गोट 580 आउट ऑफ 720. अगेन आई डिडंट गेट अ मेडिकल कॉलेज. ठीक है. सो दैट वाज द टाइम जहाँ पे चारों तरफ से प्रेशर थी. और यार कोटा जाना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू स्पेंड 3 to 4 लाख. उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा. 3 से 4 लाख रुपए आपका कहाँ चला जाएगा, यू वोंट इवन रियलाइज इट, बिकॉज 1.5 लाख रुपए तो उनका एडमिशन चार्ज थे. 1.5 लाख रुपए अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो 15 20 30 हजार से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी. यू नो व्हाट, कि मेरे को ना एक कोटा फैक्ट्री का डायलॉग याद आ रहा है कि कोटा फैक्ट्री के रिक्शे वाले भैया बोलते हैं ना कि जिसका नहीं होता है वो कोटा आ जाता है, लेकिन जिसका यहाँ आके भी नहीं होता है उसका कभी नहीं होने वाला. ट्रू. एंड तो ये सिनेरियो थे. फिर आई वाज रियली इनटू यू नो व्हाट स्टडी. तो मेरे को एक कहीं ना कहीं डिजायर थे कि आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि लोग देख रहे थे यार, रिलेटिव्स थे, फैमिली थे. यार देखो, माँ बाप बोलते हैं ना, लोग हमेशा, देखो एक कहना और करने में ना बहुत फर्क होता है. माँ बाप बोल देंगे कि बेटा मुझे लोगों की फर्क नहीं पड़ता है, आप करो, जितना अटेम्प्ट लेना है तुम ले लो, करो. लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ देयर हार्ट उनकी चीजें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है. लगती है उन्हें कि मेरा बेटा का नहीं कर पा रहा, आपका बेटा तो कोटा में था. क्योंकि अगर कोई भी दोस्त, अगर सबको पता है कि कोटा जाना मतलब सबको ढिंढोरा पिट जाता है पूरा गली में कि इनका बेटा कोटा गया है, कोटा में जाके पढ़ाई कर रहा है. तो ये कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है चीजों को लेकर. देन अगेन आई appeared for NEET exam and I got a medical college. And after that, there was, you know, I have always been a person who doesn't like, you know what, didn't want to be like a stagnant water. Like being stuck at a place, like not going forward, not going even backward. Again, the same schedule, college, come back home, do this, do that, and everything. I was completely feeling stagnant, and I didn't even get time for myself to take care of my body or to do anything that I really like to do. So it was a big task for me, and I was like, really, this is my place to be, honestly. फिर मैंने वहां से अपना जब डिसीजन डिसाइड करा कि नो, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई रियली डोंट. देखो, ये कहीं ना कहीं बोला जाता है ना कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी प्लानिंग चल रही होती है, एंड यू नो, जो हमें रियलाइज नहीं होता है. अगर हम आगे ना बढ़े, हम इसी बात पे सोचें दैट
you spent like for 3 attempts for getting into college. 3 साल आपने skip करा. And then when you finally got into a government college, that too medical में, which is next to impossible for general category. And after 1 year, you're telling your parents that now I don't want to do this. Can you see the like जो mentally एक इंसान की लग जाएगी. आधे लोग would have not even considered, but half the people don't even consider changing it, and you switch to entirely different field of MMA. You know what? Uh, most of people, they always have options to change their career, but you know what? They are so afraid of doing it. Some people, they are comfortable enough whatever they are doing. Some people, they really want to do something, but they can't change their career because of their parent. Society, parents, financial constraints, सोसाइटी यहाँ पे आती ही नहीं है. anything. सोसाइटी यहाँ पे आती नहीं है. यहाँ पे मेन आती है पेरेंट, कि उनकी पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे. बिकॉज नाउ अडेज, टू बी ऑनेस्ट, वी डोंट इवन कंसीडर आवर सोसाइटी दैट मच जितना हम अपने पेरेंट्स को लेकर कंसीडर करते हैं, राइट? तो ये भी सिनेरियो है. व्हाट आई थिंक कि अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी वेयर यू आर, इट डजंट मैटर whether you are doing engineering, MBA, or you are in medical field and you are not feeling happy and you are like, you know what, this is not my area, Yeah. or this is not my place to be. I would like to say one thing: change as soon as possible, because you won't regret later. अगर आप अभी चेंज नहीं करोगे ना, तो बाद में आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं थोड़ा सा हिम्मत दिखा देता, घर वालों से लड़ लेता, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ लेता, तो मैं कुछ कर सकता था जो मुझे वाकई में पसंद है. तो हम ये कर सकते थे. You know, वो फरहान का डायलॉग है ना कि अब्बा मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करूंगा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश रहूंगा. यार पता है, उसकी डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप किसी से शादी करते हो या आप किसी के साथ एज ए पार्टनर रहते हो, तो व्हाट रियली मैटर इज यू नो व्हाट, अ होम दैट इज फुल ऑफ लव एंड पीस एंड पीसफुल. रात को चैन की नींद. मतलब ऑफ कोर्स जब आपकी एक पार्टनर हो, वो काफी शांत हो, आप घर जा रहे हो, एंड चाहे आपके साथ लाइफस्टाइल उतनी मतलब लग्जरी हाउस नहीं है, कारें नहीं है, चीजें नहीं है, दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस. बिकॉज आजकल बोला जाता है ना कि रास्ते पे फकीर लोग और गरीब लोग ऐसे सो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि अगल बगल से कौन सी ट्रक जा रही है, कौन सी कार जा रही है, कौन हॉर्न बजा रहा है. लेकिन अधिकतर लोगों के पास मखमल का बेड लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, हीटर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, सामने एक टीवी लगी हुई है, फिर भी उन्हें कंफर्ट की नींद नहीं आती है. क्यों? मैटर यहाँ पे होता है पीस ऑफ माइंड. और अगर आपकी माइंड काफी शांत है, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, if it is completely, you know what, in a zone where you are feeling really loved, seen or praised by your partner, तो वो चीजें ज्यादा मैटर करती है as compared to going against your will or do that thing that you really, you know what, didn't even want to do it. You did it because तो आपके पेरेंट्स ने बोला, फैमिली ने बोला, that's why. कि आपने MMA चूज किया because you wanted to, but हम लोग majority of the people उस एज एन MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही यही सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ मैंने MBBS करना, मैं इतने साल, जितने साल का भी कोर्स होता है, एंड नाउ आई डू PG एंड देन अनदर स्पेशलाइजेशन इन दैट. एंड अगर मैं मेरी फील्ड की बात करूँ, सो द थिंग इज आधे लोग या तो CA कर रहे होंगे या CFA कर रहे होंगे. एंड बट यू नो, मैंने जितने भी लोगों से आई हैव ऑब्जर्व पीपल, हाफ ऑफ देम दे आर डूइंग इट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं, आउट ऑफ फोमो पीपल आर डूइंग इट. आधे लोग इसलिए कर रहे हैं कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, मेरे रेज्यूमे में पॉइंट ऐड हो जाएगा. एंड बट एक्चुअली में सब फाइनेंस 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 तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली में फाइनेंस की नौकरी, what it is, what actually it requires, who people don't realize. And majority of them, when they realize it, they
realize that they don't want to do this life of You life. know what? बहुत बार हम जो चीजें करते हैं ना अपनी जिंदगी में, वो ऐसा नहीं होता यार कि मेरी पसंद की चीजें है तो ही मैं करूंगा, अगर मेरी पसंद की चीज अगर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. Sometimes we have to do it Yeah. because it's an requirement. Yeah. It's a requirement. बात रिक्वायरमेंट की नहीं है. हम लोग आधी चीजें फोमो में कर रहे हैं बिकॉज सब कर रहे हैं, बट हम उतना टाइम नहीं देते अपने आप को रियलाइज करने के लिए कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए. लाइक अगर मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ जाऊं, दैट आई वुड वांट लाइक अ जॉब इन अ बिग कंसल्टिंग फर्म और एन आईबी फर्म. बट अगर मैं बात करूं दैट आई डोंट वांट अ वेरी हसल बसल कॉर्पोरेट लाइफ. आई वांट अ वेरी पीसफुल स्लो लाइफ. पता है क्या है? बहुत बार हम चीजें करते हैं क्योंकि ये हमारी एक नेसेसिटी होती है अपनी लाइफ को एक स्टेबल बनाने में. अब बहुत बार ऐसे होता है कि लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन और क्लियर पाथवे नहीं दिखती है कि एक्चुअल में करना क्या है. बिकॉज यार 20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है ना जहाँ पर वी आर टोटली क्लूलेस. हमें डिसीजन लाइक वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू मेक सम डिसीजन दैट विल डिसाइड माय करियर. तो वहां पे हमारे पेरेंट्स के रोल आते हैं, टीचर्स का रोल आता है, मेंटोर का रोल आता है, जो हमें गाइड करते हैं कि बेटा एक्चुअल में आपको करना क्या है. जैसे मैं एमएमए जब शुरू करा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं आगे चल के एमएमए फाइटर बनूंगा. मैंने इसलिए शुरू करा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट थी चीजें को करने में, राइट. बट नाउ इट्स माय पैशन. आई लव इट, आई लव डूइंग इट. इसलिए मैं करता हूँ, मार खाता हूँ, फिर भी जाता हूँ. बट एक चीज और भी होता है कि पैशन समटाइम्स ना हमारी फीलिंग पे भी डिपेंड करती है कि राइट नो आई एम फीलिंग दिस वे, तो आई विल डू दैट. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो फीलिंग खत्म हो गई तो वो पैशन भी चला गया. तो यहाँ पे फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे लोग ना फिर लाइक वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाते हैं. फिर दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया कि एक्चुअल में मैं चाहता क्या हूँ. फिर वो फेड अवे हो जाता है. तो बहुत बार ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्पारिंग करता हूँ और जब मेरे को पंचेस पड़ते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि ब्रो जब मैं अमेच्योर खेल रहा हूँ तो मुझे इस तरह की पंचेस पड़ रहा है, तो मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है. सोच के देखो, अगर मैं प्रो फाइटर पे अगर मैं प्रो डेब्यू करूंगा और वहां पे एक से एक धुरंधर होंगे जिनके साथ मेरी लड़ाई होगी, तो उसके पंच उसके किक मुझे कैसे इम्पैक्ट करेगी. फिर वहां पे थोड़ा सा मोरल डाउन होता है. देन अगेन आई हैव टू पुश कि ब्रो नो यू हैव टू कंटिन्यू इट. व्हाट डू यू थिंक, हमने इतनी सारी बातें करी, व्हाट डू यू थिंक कि अगर आफ्टर 18 या 20 की कोई एक बुक गाइड होती, एक जिसमें हम अपना प्रॉम्प्ट देते और वो सामने से एक जवाब दे देता कि मैं यहाँ ऐसे फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऐसे क्या चूज करूँ, करियर शिफ्ट करूँ नहीं करूँ. एक चेकलिस्ट होती या कोई जर्नल होता या कोई बुक होती जो हमें बस बता देती कि बेटा ऐसे कर लो, ये चीज ठीक हो जाएगी. यार मैं इसके बारे में पता है क्या बोलना चाहूंगा. मेरी मम्मा बताती है कि जो चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, वो चीजें शायद वो आपको बुक नहीं सिखा सकती, लोगों की बात नहीं सिखा सकती. लोग बोलने के लिए आपको 1000 चीजें बोलेंगे, है ना, कि बेटा आप ऐसे करोगे तो ऐसे जाओगे. बट दे वोंट टेल यू द एग्जैक्ट मेथड, द रियल स्ट्रगल, सफर जो आप उस जर्नी में फील करोगे. तो मैं यही बतलाना चाहूंगा कि टिल द टाइम यू आर 25 यू शुड कीप एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग. अगर आपको एक्टिंग पसंद है, आप एक्टिंग लाइन में जाओ. अगर आपको कुछ टाइम के बाद लगता है कि ब्रो एक्टिंग इज नॉट माय फील्ड, देन अगेन चेंज योर करियर बिकॉज दिस इज योर लाइफ, है ना. डोंट कॉम्प्रोमाइज इट. डोंट कॉम्प्रोमाइज इट फॉर योर फैमिली, इवन फॉर योर पेरेंट्स. बिकॉज सी आपका पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी थी कि आपको पाल पोस के बड़ा करना, एक मुकाम तक पहुंचाना. बट दिस इज योर लाइफ. नाउ इट्स टाइम to be at driver seat and you have to drive your life. You can't be a passenger right now. तो मेरा कहना यही है कि जब तक आप 25 के नहीं होते हैं ना, आप अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करो
और देखो कि आप एक्चुअल में कहाँ रेजोनेट करते हो, आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, वेयर यू फील लाइक सो इमेंसली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ऐसा नहीं लगता हो कि हाँ मुझे जबरदस्ती के लिए, मुझे पता है जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है या भेजा जा रहा है। तो मेरा बस एक ही रिकमेंडेशन होगा, टिल द टाइम यू आर 25, कीप experiencing as much things as you can. That's it. Don't think so much. Don't think about other people, even your parents, because this is your life and you have to be a driver now. You have to drive your car. You have to drive your life. है ना? There is a whole blank page in front of you. So you have to write all this story. This is my recommendation. बट उस ब्लैंक पेज को भरने में भी ना वो कहने को लगता है लाइक 25 is a lot of time, but when you start experimenting and exploring things, it takes a lot of time. And the main point is that everything is really confusing कि 100 दिशाएं हैं, मैं कौन सी दिशा में जाऊं। एंड उस कंफ्यूजन से हम सब गुजरते हैं, आप गुजर चुके हो, मैं गुजर रही हूँ, एंड हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है वो भी गुजर रही है। सो इस कंफ्यूजन का यही सोल्यूशन है, जस्ट फॉलो योर हार्ट, कीप फिगरिंग आउट एंड कीप एक्सप्लोरिंग। नो, देन नो, इट वोंट गो लाइक दैट। अगर आप यही करते रहोगे ना, तो आप हर एक साल, 1.5 साल, 2 साल में फिर आपको मन क्या, अरे भाई नहीं, ये तो मेरा काम कर ही नहीं रहा है, मैं कुछ और करूंगा, या भाई मेरा काम नहीं कर रहा, मैं कुछ और करूंगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू हैव टू चूज समथिंग जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। यू कांट ऑलवेज कीप स्विचिंग योर करियर from this to that, otherwise you won't have a stable life, you won't able to sustain your life, because at the end we need money to sustain our life, right? देखो बात आपकी सही है, that money is the prime factor, हम करियर पैसे के लिए बना रहे हैं, right? But my main point is that 25 तक you need to explore and analyze everything and then come to a point. One should not restrict themselves कि नहीं यार ये पत्थर की लकीर है, मुझे यही करना चाहिए। And इस journey में you will get confusion, you will get doubts, you will have guilt, you will have tons of things. You had it, I'll have it, everyone will have it. And but उसका solution यही है that we just have to follow our heart, keep following life, and just be calm, reflect on our feelings and everything, what we actually want. We अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, एंड नॉट डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज सब कर रहे हैं या सबको करना चाहिए। ठीक है, तो इस जर्नी में लाइक वी आर रिफ्लेक्टिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर फिगरिंग आउट आवर लाइफ, एंड वी वांट यू टू फिगर आउट योर लाइफ एज वेल। वी आर ऑल ट्राइंग, वी वांट यू टू ट्राई। सो वी आर ट्राइंग, honestly we are trying.